Good morning, students. Today's topic was protocol and IEEE standards. In this topic, we learn about what is protocols, how protocols are used in our network reference models, and what do you mean by IEEE standards, where they come from, and what is the purpose of that IEEE standards, how it is very important in this computer network subject. So first we see about in this chapter we discuss about different multi-level protocols, including their functions. The major protocol choose for decisions are follows, such as CSMA, collision CSMA CD, token passing and pooling. This topic was very important for your final examination as well as your knowledge. Token, pooling, and CSMA CD. And next, after that, we discuss about IEEE standards that apply to LAN-based structures on different protocols. Okay, so what do you mean by LAN? Chapter modules. What do you mean by LAN protocols? Carriers and multiple access, collision, division. What do you mean by carriers and multiple access? Suppose we have a topology of ring topology. In this ring topology, how many students know about ring topology, how it works? सर रिंग टोपोलॉजी में आपस में कनेक्ट होते हैं सारे कंप्यूटर्स. Yes. और जैसे in a form of circle. Okay, say yes or no. Yes sir. Yes. Or other words, in technical term we say that in a form of loop. What do you mean by loop? Starting point and end point are coming from one place to another. That is known as loop. When we start and when we reach, both points are same. That is known as loop. Okay. So in these topics we have different type of LAN protocols such as CSMA CD, token passing, and pooling. There are three methods in which we transfer data from one end to the another end. With the help of any of these protocols, LAN protocols, we transfer data from one end to the another end, or we are sending the data from our intermediate directly connected node, not intermediate node, it is directly connected node from both sides. Okay. I will talk about IEEE backgrounds. The full form of IEEE stands for Institution of Electrical and Electronics, professional non-profit organization है. ये 802 point under IEEE 802 is a code name of IEEE. There are several IEEE standards in this. Examples such as 802.3 known as Ethernet bus network. Okay. In ISO reference model, there are 7 layers. Most models are communicate and communications process. ISO stands for International Standard Organization. OSI stands for Open System Interconnections. These are the IEEE standard reference model. Now, IEEE models are under which layer? In this layer, we learn about IEEE model that is known as data link layer. The data link layer are divided into two parts. First part is LLC and another part is MAC. In MAC, we learn about IEEE models. Comparison of OSI and ISO, OSI reference model and TCP reference model. We already learned in the previous chapters.
there are layer wise protocol used in each reference model. Now, the important point is that in data link layer and physical layer, we learn in OSI reference model that is known as network access. But in TCP/IP and ISO reference model, we learn about Ethernet, token ring, etc. These are the IEEE standards for connection of network. Now, each layer contains their own protocols by which they based on, and the purpose of that protocol assigned to that for the transmission of data from one end to the another end. Okay. In ISO OSI reference model, we learn about 802.2, that is known as LLC, or the 802.2, also known as LLC. If in a question we talk about explain 802.2, it is also considered as explain LLC, logical link controls. And the second part is 802.345, that is known as Ethernet part. Another look for network protocols. These are the network protocols which based on another way, another 7 layers. This is a very important diagram. Take a screenshot for that. Everyone, please take a screenshot for this. Layer 1 stands for protocols of IEEE standards. Layer 2 stands for their name. Layer 3 stands for it is connection oriented and connectionless. Layer 4 stands for what is a class of transport for transferring data from one end to the another end. 5th layer stands for how much time it takes to complete the complete a session for continue the session for connecting, and 6 and 7 stands for their presentations and basic protocols by which interfaces protocol by which we can interact and send the data. Okay, now focus on IEEE 802. It based on OSI reference model. It is a part of data link layer and physical layer. Area of anticipation, that is network card and cables, is a part of 802. Network card and cables WAN connectivity, which means that your mobile connected with a Wi-Fi, that is a part of 802. You can transmit data with the help of wired medium, that is known as cable. It is a part of 802, or you can transfer the data from wireless medium, that is also part of 802. Okay. In 802, there are several protocols which we learn about in the next slides. These are the types of 802 protocols. These are the subgroups and their responsibility. 802.1 for interconnecting networks. In the interconnecting networks, which means that we are considering a lab. In this lab, we are connecting each computer with the help of 802.1. After that, these labs works as a WAN. Or if we connected with the internet, it also works as a LAN or as well as WAN. Second is 802.2, that is known as LLC, logic link controls. Third is 802.3, that is known as CSMACD, and fourth is 802.4, that is known as tokenless. अब हम इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं 802.1 इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स. इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स वो कनेक्टिंग नेटवर्क्स होते हैं जिसमें हम लोकल एरिया नेट में कनेक्ट करते हैं. हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है 802.1 बता देगा. स्टैब्लिश हुआ है कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगता है स्टैब्लिश होना कनेक्शन, कोई बताएगा? एक्नॉलेजमेंट आता है. एक्नॉलेजमेंट आता है, यस. एक दूसरा
फिजिकल कनेक्टिविटी और वायरलेस कनेक्टिविटी प्रॉपर कनेक्टेड हो, दैट इज नोन एज 802.1 का रूल। ठीक है, 802.2 अब इसके बीच में डेटा ट्रेवल करे, दैट इज देयर रूल। 802.3 CSMA CD, इसका फुल फॉर्म लिखवाया था, क्या लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ऑब्लिक कोलिजन डिवीजन, विच मीन्स दैट कि अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कोई डेटा, एक कैरियर है, वो डेटा को ट्रेवल करके ले जा रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे, उसको कोलिजन ना हो, उसका काम है 802.3। वो डेटा किसी से टकराए नहीं और जिसकी वजह से डेटा सेफ एंड से आखिरी एंड तक पहुंच पाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो काम है उसका। देन नेक्स्ट इज टोकन बस 802.4, ये बस टोपोलॉजी पे बेस्ड है, इसके बेसिस पे हम ट्रेवल करेंगे डेटा को एक एंड से दूसरे एंड पे। उसके बाद है 802.5, दैट इज नोन एज टोकन रिंग। 802.6 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विच मींस दैट डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करने के लिए हमें जो नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी वो कौन होगा? 802.6। ओके, डिफरेंट सिटीज को, विच मींस दैट डिस्टेंस मैटर। ओके, 802.7 क्या होता है? ब्रॉडबैंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के अंदर लगता है। जैसे अगर मैं ओके, हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की। हमारे पास आज किसी के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है? कोई बच्चा है जिसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है? कोई बताएगा मेरे को? अच्छा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लैन कनेक्शन से आता है, फाइबर केबल से आता है, या टेलीफोनिक वायर कनेक्शन से आता है? लैन कनेक्शन से आती है। आपके सिस्टम तक नहीं, आपके सिस्टम से पहले वो जो एक डिवाइस लगा रहता है वहां तक की बात कर रहा हूं। वो 90% एंड अबव पहले के टाइम में आता था टेलीफोनिक वायर से। अब हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन फाइबर वायर से भी आ रहा है, लैन वायर से भी आ रहा है। ठीक है, तो उसकी एडवाइजरी ग्रुप बनी हुई है। आफ्टर दैट अगर मैं फाइबर से ले आऊं तो 802.8 प्रोटोकॉल यूज करूंगा। 802.9 प्रोटोकॉल इंटीग्रेटेड वॉइस एंड डेटा नेटवर्क से। इंटीग्रेटेड वॉइस एंड डेटा नेटवर्क्स कहां यूज हो रहा है, किसी ने देखा? वॉइस ओवर कॉलिंग याद आया किसी को? जियो सबसे पहले लेकर आया था वॉइस ओवर कॉलिंग, इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग। ओके, दैट इज नोन एज 802.9। 802.10 नेटवर्क सिक्योरिटी के बेस पे होगा। 802.11 अगर एक्टिव होगा तो वायरलेस नेटवर्क्स के कनेक्टिंग होगा, फिजिकल मीडियम के थ्रू कनेक्टेड नहीं होगा। 802.12 होगा तो प्रायोरिटी एक्सेस लेंस होगा, कि इसकी प्रायोरिटी हमेशा है, इसके पास का पैकेट जब भी आए तो नॉन इंटरप्टेड नॉन स्टॉप वे में इसको प्रोटोकॉल को भेजना है। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है। अब हमने बात करेंगे इथरनेट की। तो इथरनेट में हमारे पास कनेक्शंस के टाइप है 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps एंड 10 Gbps। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक्स की केबल इनमें से किसको सपोर्ट करेगी और किसको नहीं करेगी? फाइबर ऑप्टिक्स की केबल 10 Mbps सपोर्ट करती है कि नहीं करती? करती है। वेरी गुड। यस सर। ओके, और 10 Gbps को 10 Gbps को नो सर। वेरी गुड। नो कि हाँ? सर अभी तक तो इतना स्पीड हाँ, करती कहाँ कोई देता है। आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल हर जितने भी स्लाइड्स में, इस स्लाइड में जितनी भी स्पीड्स लिखी है सबको सपोर्ट करती है, क्योंकि वो उसकी कनेक्शन है। हाँ, अगर कैट 6 केबल की बात कर दूं मैं, तो कौन से पार्ट को सपोर्ट करेगी, कौन से पार्ट को सपोर्ट नहीं करेगी? या
मैं अभी आपको कनेक्शन स्टेब्लिश करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, है ना। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करा, अब मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूं। इसमें आप देखिएगा, यस, स्क्रीन पे ऑन किया हमने, स्क्रीन शेयर स्क्रीन पे ऑन किया। दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ दिख रहा है सब कुछ? मैं ये डेट टाइम वाली कनेक्शन पे क्या, इस पे क्या इंटरनेट एक्सेस लिखा हुआ दिख रहा है सबसे नीचे बॉटम में? से यस और नो? हाँ यस यस सर। इसके ओपन नेटवर्क कनेक्शन पे क्या, एक स्क्रीन ओपन हो रही है ब्लू कलर की, हो रही है। हाँ यस इंटरनेट पे गया, इथरनेट के बाद चेंज अडेप्टर ऑप्शंस पे गया, ये जो सामने लिखा है नेटवर्क की प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा मैं, सॉरी, ये मेरे नेटवर्क कनेक्शन है 3, जिसके थ्रू मैं हमेशा कनेक्ट करता हूं। अब मैं इथरनेट से फिलहाल कनेक्टेड हूं और एक्टिव है, तो मेरे पास इसकी स्पीड क्या दिख रही है? कहीं स्पीड दिख रही 100 है? Mbps सर 100 Mbps। कहाँ लिखी हुई दिखी तुम्हें? सर स्पीड के बगल स्पीड के सामने, सर वो डिटेल्स के ऊपर लिखा है। स्पीड के सामने सर। 100 Mbps लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि मेरा नेटवर्क अडेप्टर कार्ड 100 Mbps तक सपोर्ट करता है। ये फुली डुप्लेक्स मोड में कनेक्टेड है। अब मैं इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करने की कोशिश करता हूं, जो मैं करा था पहले, मैं देखता हूं, ठीक है। मेरा इथरनेट कार्ड ओपन हुआ, ये बैंडविड्थ जो है, ये बैंडविड्थ हमने सपोर्ट करी है 100 Mbps की। अगर मेरा नेटवर्क अडेप्टर कार्ड की बैंडविड्थ 1 Gbps की हो, तो क्या मैं इसको उसमें सेट कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। इसमें एक सॉफ्टवेयर सेटिंग होती है, उसके थ्रू हम करते हैं। तो हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, मे भी शायद नहीं है इसमें बेटा। फायरवॉल करें, टू नेटवर्क शेयरिंग, नहीं, प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पॉलिश करके मैं आपको बताता हूँ, आज की क्लास में बताऊंगा मैं, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, देन नेक्स्ट, अभी सबसे ज्यादा जरूरी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वायरलेस लिंक प्रोटोकॉल 90% एंड अबव, उसी के थ्रू कनेक्टेड हैं सारे मोबाइल्स एंड ऑल द थिंग्स। तो वो हम यूज कर रहे हैं 802.11, that a speed of 1 Mbps with 2.4 gigahertz frequencies, which is known as FHSS and DSSS। हम देखेंगे इसमें भी। उसके बाद IEEE स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं 802.11a, that is 54 Mbps 5 gigahertz। इसकी फ्रीक्वेंसी है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग के बेस पे ये काम करता है, इसलिए इसकी 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और इसकी स्पीड बढ़ेगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उससे उतनी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। आफ्टर दैट 802.11b, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.4 DSSS के बेसिस पे बात करते हैं, और ये इसकी 11 Mbps है। तो ये सारी की सारी ये थ्योरेटिकल वे है, आप जो इसमें देख सकते हैं। हम कहाँ इसको यूज करते हैं वो हमें मोबाइल में भी यूज होता है। फिर न्यूअर सबसे अभी लेटेस्ट वाला है 802.11n, ये बिल्कुल लेटेस्ट है,
इस प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क कर रहा है। अब हमारा क्या है कि डेटा लिंक लेयर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बार बार हम बोल चुके हैं, ठीक है। तो उसमें IEEE स्टैंडर्ड्स कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट में वर्क करते हैं। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल में 802.1 वर्क करता है, 802.1 वर्क करता है। 802.1 बोथ पार्ट में डेटा लिंक लेयर में वर्क करता है, एज वेल एज 802.3, 4, 5, 12 ये मैक लेयर में वर्क करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट वे है आंसर एक्सप्लेन करने के लिए और याद रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट? ले लिया? अब हम पढ़ेंगे CSMA। ले लें, हम वापिस आ जाए। हाँ ठीक है। हो गया सर। ओके